Hello, children. Uh, Today we will start our first exercise. Sorry, we will continue our first exercise with the question number 6. Okay, up to question number 6 we have done in last class. So, in question number 6, see, this equation is given to us. This is the equation of a circle. This equation is given to us, and equation of a line is also given to us. So these two equations are given to us, and we have to uh, find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis and this line and this circle. Okay. So first of all, you have to draw the figure. See. So this is a circle. Okay. As you can see, the radius of the circle is 2. So this point would be 2 comma 0, and the coordinates of this point would be 0 comma 2. This is our O, this point is A, and this is B. Okay, and we have to find out the area in the first quadrant. That means we have to find out the area of this whole part, OAB, OA. Okay, so we have to find out the area of this only this quadrant, first quadrant. So this equation of a line is also given to you. As you know that this line will pass from the origin, that means from point O. Okay, and we cannot assume that it will pass through from here. Okay, so what you will do for this, first of all we will solve these two equation. We will find out the point of intersection of this circle and line. So for this, what you will do, you will put the value of x in this equation. So when you will put the value of x in this equation, what you will get, at the place of x I'm putting root y whole square plus y square, that is equals to 4. So this would be 3y square plus y square. So you will get 4y square is equals to 4. So your y square would be 1. So you will get y equals to plus minus 1. Okay. So when your y is 1, your x would be 3, root 3. Fine. When we put this value of, suppose we are taking y equals to 1. So when we put this value here, your x would be root 3. Okay. So at this point it will intersect. Fine. So you will draw like this. So this is a line of equation x equals to root 3y. Okay, at this point the coordinate this point is root 3 comma 1. Okay children, तो हमें y इक्वल्स टू -1, हमें कुछ y इक्वल्स टू -1 से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, सो here we have to find out this area. ओके, तो इस पॉइंट से मैं पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. So this is point C, and the coordinates of this point C will be root 3, 0, because the value of x is root 3 here. Okay, now what you have to do, first of all you have to again you have to assume a strip here, this strip. So the length of this strip would be y and breadth will be dx. Okay, this is C and this point is D. Now area of required region, that is AODA. AODA. This area is equals to area of
region CODC plus area of region ACDA. Okay, ACDA. So for this, what you will do first, I'm taking limit from 0 to √3. इसके लिए एरिया CODC. ओके, पहले हम इस, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन के अकॉर्डिंगली है, आप इस लाइन को अगर इंटीग्रेट करोगे, इस लाइन को फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, सो यू विल गेट दिस एरिया, बट आफ्टर दैट इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, सो यू हैव टू integrate from √3 to 2. So I'm taking limit 0 to √3 and then area that is y into dx, वो स्ट्रिप का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया, प्लस नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका एरिया निकालने के लिए आपको लिमिट लेनी पड़ेगी √3 से 2, दैट इज फ्रॉम √3 to 2 एंड द वैल्यू ऑफ दैट इज अगेन y into dx, बिकॉज स्ट्रिप का एरिया तो सेम ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन से अब यहाँ पर इसकी y की वैल्यू निकालो. तो ये y वुड बी 4 - x², √3 इसको सॉल्व करोगे, y की वैल्यू ये मिलेगी. तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, बिकॉज यहाँ पर आप इस सर्कल के पार्ट को यूज कर रहे हो, इस कर्व को हम इंटीग्रेट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी, लाइन वाली, x/√3. सो ये y वुड बी x/√3. So here I am solving it 0 to √3 x/√3 into dx plus √3 to 2 and y will be 4 - x² within under root into dx. Okay, so इन दोनों को सॉल्व कर लेना बच्चों, इनके लिमिट्स डाल देना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. ठीक है, so this is your work and you have to do. Is it clear? इंटीग्रेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है अभी. क्लियर है? तो अगर फिर भी नहीं होता, so please you can ask. Okay, so note it down. Now children, this is your question number 9. Okay, of same exercise. Here the equation of parabola is given and y equals to mod x is given. So you will take y equals to -x and y equals to x. Fine. So here I'm drawing the diagram. Okay, so this kind of parabola you will form. So y equals to x² है. ठीक है, कॉनिक सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, तो you can easily draw this parabola. After this, children, y equals to x and y equals to -x is given. So first of all, what I am going to solve this equation and y equals to x. Okay, so this is our equation number 1, this is our equation number 2, and y equals to -x, this is our equation number 3. So first of all, I am solving first and second from 1 and 2. So here from this first and second equation, I am putting at a place of y, I am putting x. So when you will put this value of 2 in 1, you will get x equals to x². So x² minus x, that would be 0. X minus 1. So here you will get x equals to 0, one value, and one value will be 1. Okay. So it will, as you know that if equation is y equals to x, so it will definitely pass from the origin. Okay, so the graph of this equation y equals to x would be like this. Okay, so this point would be, here your x is 1. If your x is 1, your y would also 1. So this point would be 1, 1. This is your O, this is point A. Similarly, when we will solve these two equations, so from 1 and 3rd,
So here you will put minus x is equals to x square. So x square plus x is equals to 0. So when you will take x as common, you will get this. So one value will be x equals to 0 and second would be x equals to minus 1. Okay, so it will also pass through the origin. If your x is minus 1, your y would also minus 1. If you put x equals to minus 1 in this equation, y would be 1. Sorry, fine. So second point would be, it will come here. So the graph of this equation would be like this. Okay, yes, so this point is your B. Okay, so here I'm taking this is your 1 comma 0 and this is your minus 1 comma 0, and the coordinates of this point will be minus 1 comma 1. Now we have to find out the area of this region. Okay, this region, this and this region. Now try to understand. Okay, so if you'll talk about the area, so what I will do, I will find out the area of this region A. This point is C and this point is D. So I will find out the area of region C, AOC. First of all, I will find out the area of AOC. This is a triangle. Then I will find out the area of region COAC, this curve. ठीक है, अगर मैं इस वाले का एरिया निकालूं, इस पूरे ट्राइंगल का, और इस कर्व का एरिया माइनस कर दूं उसमें से, तो यही एरिया मिलेगा मुझे. ठीक है, अगर मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम 0 to 1, तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा, एरिया ACO. अगर मैं उस एरिया में से इस एरिया को माइनस करूं, एरिया अंडर दिस कर्व, अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम 0 to 1, तो मुझे कर्व के नीचे का एरिया मिलेगा, और दोनों को मैं माइनस करूंगा, मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा जो मैंने शेड करा है. ठीक है, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये भी एरिया मिल जाएगा, बिकॉज दोनों सेम है. ठीक है, तो एक पार्ट का एरिया निकालते हैं, इंटू 2 कर देंगे, सेकंड पार्ट का एरिया भी आ जाएगा. ना वो एरिया निकलेगा कैसे, ये देखिए. अब ये एक्सिस के नेम देना बेटा, मैंने दिए नहीं है, बट इन एग्जाम यू हैव टू राइट. डायग्राम जितना क्लियरली बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर में, और आपको उतनी ही ईजी होगा इसको सॉल्व करना. ठीक है, so area of required region, that is equals to area of region A या OCA minus area of region COAC. दिस यहाँ पे ट्वाइस कर देना, बिकॉज इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दो जगह पे एरिया आ रहा है ना ये वाला, तो दोनों पार्ट का एरिया मिल जाएगा. अब सॉल्व कैसे करना है वो देखो. दैट इज इक्वल्स टू 2. अगेन हम क्या करेंगे, वो स्टेप कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, तो y इंटू डी एक्स वर्टिकल स्टेप ही कंसिडर कर लेंगे. ऐसे स्टेप कंसिडर कर लेना. दिस इज योर डी एक्स एंड दिस इज योर वाई. लिमिट क्या लेंगे हम यहाँ पे, 0 to स्टेप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, बिकॉज हम इस पार्ट को सॉल्व करें, इस वाले पार्ट को तुम सॉल्व ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इसको यहीं पे कंसिडर करो. दिस इज वाई, दिस इज डी एक्स. ओके, सो ये स्टेप मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाली. अगर मैं स्टेप को यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर, तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा इस ट्राइंगल का. ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ. अगेन y इंटू डी एक्स माइनस सेम कर्व को, मैं इस वाली कर्व को इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेटा, इस वाली कर्व को. ठीक है, पैराबोला वाली कर्व को. तो इसकी सेम लिमिट आएगी 0 to 1 और y इंटू डी एक्स सेम 0 to 1. अब जो y लोगे, पहले आप इस लाइन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, लाइन की इक्वेशन क्या, y इक्वल्स टू x. ठीक है, तो y की जगह पे x पुट कर देना यहाँ पर, माइनस 0 to 1. यहाँ पे जो y आएगा वो y आएगा यहाँ से. ठीक है, तो y की वैल्यू x स्क्वायर, सो x स्क्वायर इंटू डी एक्स. दोनों को सॉल्व कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर देना. ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगेगा एक.
दोनों को सॉल्व कर देना, लिमिट्स पुट कर देना, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. So figure is very important, so understand the figure and then try to solve. So this is how you can solve a question number 9. Okay children, so after this I'm going to solve the next question of this exercise, that is question number 10 also. Okay, so please note it down. Now we have to solve our question number 10. Okay, in question number 10 the equation of parabola is given, that is x square equals to 4y, and equation of a line is given, that is x equals to 4y minus 2. Okay, so first of all you have to draw the diagram. So the diagram would be like this. Okay, this is the parabola, and this is the equation of a line. As you know that this equation will not pass through the origin, because अगर मैं x0 पुट कर रहा हूँ तो y0 नहीं आ रहा. ठीक है, इन एक्सेस को भी नेम दे देंगे बेटा हम यहाँ पर. दिस इज x डैश x, दिस इज y डैश एंड दिस इज y. अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो एट हियर आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन. So your x square is here, so I will write 4y minus 2 whole square is equals to 4y. This would be 16y square plus 4 minus 16y, that is equals to 4y. Okay, so it would be 16y square minus 20y plus 4 equals to 0. 4 आपको 4 से डिवाइड कर दो इससे. 4y square minus 5y plus 1 equals to 0. Now split the middle term. Now you have to split the middle term. So your factor would be 4y minus 1 and y minus 1, that is equals to 0. एक में आपको y की वैल्यू मिलेगी 1/4, एक में आपको मिलेगी 1. ठीक है, अगर आपका x 1 है, अगर x आपका 1 आ रहा है तो y क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. If y equals to 1, then your x would be put in this equation, your x would be 2. ठीक है, if your y equals to 1/4, your x would be minus 1. तो एक पॉइंट आपको मिला 2,1, एक आपको मिला -1 1/4. ठीक है, तो दो पॉइंट्स आपको मिल गए. तो इन दो पॉइंट्स को अपने प्लॉट कैसे करना है, सी. और 2,1, तो 2,1 बेटा आपका यहाँ पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, और -1,2 यहाँ पर आएगा. तो आपको जो इक्वेशन बनेगी, लाइन जो ड्रॉ होगी वो ऐसा ड्रॉ होगी. ऐसे ड्रॉ होगी लाइन. ठीक है, तो ये लाइन जो है, इस लाइन की इक्वेशन ये है. पॉइंट्स मिल गए आपको. 2,1 है, दिस इज योर -1 1/4. इसको नाम दे देते हैं. दिस इज योर O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज C. ओके, तो ये तो आपको हो गया डायग्राम. ठीक है, पॉइंट्स कैसे निकालने होते हैं ये आपको मैंने बता दिया. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एक की वैल्यू दूसरे में डालो और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे. और बेटा हमें क्या करना है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर 4y. को इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन नहीं करा है. ठीक है, तो आपने जो एरिया निकालना है
जो दोनों कर्व्स कर रही है ना एरिया, तो आपका जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकला है, जस्ट वेट, एक्चुअली -1,4 बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, वो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं डी पॉइंट के, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्स की वैल्यू -1,0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट है वो बी का नहीं है, डी का है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ध्यान रखना। और अब आप क्या करोगे, इस कर्व को, इस लाइन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, देखो इस लाइन को, ए डी को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम लिमिट -1 to 2, तो मुझे सारा एरिया मिल जाएगा, मुझे मिलेगा एरिया, दिस पॉइंट इज ई डी ए एफ, ओके, ए डी ई एफ मुझे एरिया मिलेगा अगर मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करूं फ्रॉम लिमिट -1 to 2। तो मुझे तो क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, है ना। और तो आप क्या करोगे, फिर माइनस कर देना इस कर्व के अंडर एरिया, ठीक है, इस एरिया को माइनस कर देना, आपको सिर्फ यही एरिया मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं यहाँ पे समझा रहा हूं कैसे करना है ऐसे, प्लीज वेट, ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए करिए कैलकुलेशन मैंने। सी, area of required region, that is equals to area of region EDAF plus, sorry, minus area of region area of region EDAF E, ओके, ये माइनस कर दिया मैंने। वो स्ट्रिप हम कंसिडर करेंगे बेटा पर वर्टिकल स्ट्रिप, सेम स्ट्रिप कंसिडर करूंगा वर्टिकल, वही आप लोगे इसको dx, इस वाले पार्ट इसको आप ले लेना y लेंथ, तो आप लोगे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2, ठीक है, इंटीग्रेशन -1 से 2 तक जाएंगे, वही y इंटू डी एक्सपेंशन करो, माइनस सेम -1 to 2, ये इसकी लिमिट भी सेम है, ये भी y इंटू डी एक्स ही आएगा। अब यहाँ पे जो y है वो देखना y की वैल्यू क्या पुट करेगा। अब यहाँ पे लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हो पहले, तो लाइन से y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, आएगा आपका x+2/4, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से निकालोगे y की वैल्यू, तो वो आएगी x+2/4 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट तो आप लोग कर लोगे, ठीक है, माइनस जो सेकंड पार्ट है, जो y है यहाँ पर है, वो एक कर्व है, पैराबोला वाली कर्व है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू यहाँ से आएगी x² इंटू डी एक्स। दोनों को सॉल्व कर लेना, माइनस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ नहीं करना और इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कर लेना, सेकंड एक्सरसाइज तो आ नहीं रही है, मिसलेनियस की आई थिंक 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे कर रहे हैं, अगर कोई करने वाला होगा तो मैं सॉल्व भी कर दूंगा अभी, प्लीज वेट। Now see children, only first 4 questions of miscellaneous exercise you have to solve, question 1, 2, 3. So they are very easy question, okay. So I'm checking out the question number 4 also, and after that all the question has been deleted from your syllabus, okay. Exercise 8.2 भी नहीं आ रही है बिल्कुल, ठीक है। तो let me check question number 4 of this miscellaneous exercise. Now see children, I'm solving the question number 4 of your miscellaneous exercise now, okay. It's also a very easy question, okay. So now this chapter is completed after this question, okay. The next chapter which we will start, that is the next chapter, differential equation, okay. So beta, this equation is given to us, y equals to x+3, okay. सो एक बार आप y ले लो x+3 ओनली, एक बार आप y ले लो -x+3,
दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर देना, ठीक है। सो आपका ग्राफ जो ड्रॉ होगा, बता देता हूँ कैसा होगा, 1 2 3 1 2 3, ओके। सो इट वुड बी लाइक दिस 3, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है ना, सो व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x वुड बी -3, तो दिस इज -3, 0 and this point is 3, 0, 3, and this line, the another line which you will get here like this is for this equation, okay। So graph would be like this, so x name देना से x dash y dash, एक से बेटे काम कर लेना, ठीक है। दिस इज ओ origin, तो ये बच्चा इसका ग्राफ बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, आपको क्या बोला था, जब मॉड में आएगा तो जो बीच में फंक्शन आ रहा है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो आपको x मिलेगा -3। आपने क्या करना है, इसकी लिमिट लेनी है -6 to 0, और आपको गिवन है x प्लस 3 ना विद इन मॉड, इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो -6 से पहले -3 तक लेके जाओ, और इसके बीच में देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। x प्लस 3 अगर ये मॉड नहीं है, ये मॉड है, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा, ये मॉड है, सॉरी। तो अगर मैं इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेता हूँ, -4 -3, तो नेगेटिव आएगा, तो आई विल राइट -x प्लस 3, ठीक है। देन प्लस, नाउ हम इसको इंटीग्रेट करना -3 से 0 तक, तो इस इन बिटवीन दिस इज पॉजिटिव, तो दोनों को इंटीग्रेट कर देना, सॉल्व कर देना, वैल्यू पुट कर देना, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके चिल्ड्रन, नाउ बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बहुत छोटा चैप्टर है एक्चुअली, ये छोटा चैप्टर सीबीएसई ने इस साल कर दिया है, ठीक है। छोटा तो नहीं था, जो सेकंड एक्सरसाइज थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो 2-3 क्लासेस और लेती हो। एनीवे, अभी तो छोटा हो ही गया, तो इतना बैठ के करके रखो, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट इन एनी वन ऑफ द क्वेश्चन, सो प्लीज आस्क, ओके। बाय बाय, टेक केयर।